Hello friends. So today we are starting with question number 18 of your chapter number 5, that is admission of partner. Jaini and Anya are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet of their firm as on 31st March is given. Capital Jaini Anya का capital accounts दिया हुआ है. Then general reserve, investments reserves, workmen profit sharing fund, creditors. Then on the asset side, buildings, machinery, investments, debtors minus bad debt reserve, bank. They admitted Priyanka as a partner on 1/4/16 on the following terms. Priyanka will bring 14,000 as goodwill in cash. Priyanka will bring her capital equal to 20% of the new capital of Jaini and Anya. Last जो question हमने पढ़ा, in that case we found out the proportionate capital, right? But here in this case Priyanka ने क्या बोला है कि I'll bring 20% of what the new partners are having as their closing capital, right? New profit and loss sharing is given 2:2:1. Provision for bad debt is not required. Machinery is to be reduced by 10%. Market value of building is 70,000. Market value of investments is 68,950. Total capital of the old partners Jaini and Anya after all adjustments will be maintained in their respective new ratio. Total capital of old partners Jaini and Anya after all the adjustments will be maintained at in their relative new ratio. For this purpose, necessary adjustments are made through bank. This is the वेरी नाइस पॉइंट आई कैन से. बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये 8th नंबर का पॉइंट. हमें मेन जो पोर्शन इसमें डिस्कस करना है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज योर पेज पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 8 ओनली. बाकी पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में ऐसा है, खुद से आप सारे पॉइंट सॉल्व कर सको ऐसा है. ओनली पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 8 इज समथिंग विच इज न्यू फॉर यू, विच इज अ गुड पॉइंट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. मैंने प्रॉपरली यहाँ पे फॉर्मेट्स बना के रखे हैं एंड आई एक्सपेक्ट यू टू मेक द फॉर्मेट्स प्रॉपरली ओनली. चलो, here I have the formats ready. So first of all, what we will be doing is, by just a minute, by balance brought down Jaini and Anya, it is 70,000 and 56,000, correct? And then cash का क्या balance था? To balance brought down, it was 39,200, correct? Then we had what? The step number 2, that is जो भी reserves है, reserve surplus are there, तो उसको हमें partners में distribute करना है if there is any free reserves. So general reserve is there 8400 का. Then investment reserve is also there 4200 की. अब investments reserve की मैं बात करूँ तो investments में यहाँ पे हम देखें तो there is investment का value of 68,950 और investments थे कितने के? 63,000. तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. सो कैन आई से इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो है वो तो यूज नहीं होने वाली, इट इज टोटली फ्री रिजर्व, राइट? सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स इन द ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट? सो लेट्स डू इट. बाय जनरल रिजर्व्स, उसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. सो इट विल बी 5040 एंड 60. देन बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स that will be 2520 and 1680, right? So this is how we are supposed to distribute the reserves whatever if we are having. फिर fictitious asset कुछ है, let's look at the question. fictitious asset कोई है नहीं है, right? So this portion is now done. Now the next step was step number 3, that is उसमें हम क्या करेंगे? goodwill का portion calculate करेंगे. So in goodwill का portion what we are supposed to do is we are supposed to check. हमें क्या बोला है? 14,000 वो goodwill कैश में लेके आएगी. New ratio is given, old ratio is given. So now what we are supposed to do is we are supposed to find out the sacrificing ratio. So ओल्ड रेशियो क्या नाम है दोनों का? जाइनी, आन्या एंड प्रियंका. 3:2 and new ratio is
2:1, right? So the sacrificing ratio will be old ratio minus new ratio. Jaini ka sacrificing ratio will be 3/5 minus 2/5 comes to 1/5, and Anya ka sacrificing ratio will be 2/5 minus 2/5 comes to 0. So can I say only Jaini is sacrificing? So all the benefit of premium for goodwill will be given to whom? Jaini. So the first journal entry will be cash account debit to premium for goodwill account, as there is no old goodwill given in the question, right? अगर old goodwill होती तो हम पहले उसको distribute करते. Then 14,000 and 14,000. Then second will be premium for goodwill account debit to Jaini's capital account, 14,000 and 14,000, correct? So just let's do the ledger posting. To premium for goodwill account, 14,000 here by premium for goodwill account, 14,000. Done. So we are done with the goodwill portion. See, the major portion is capital का portion. So बाकी सब तो मैं routine एकदम आपको आता ही है ऐसा assume करके as of now कर रही हूँ, right? Because I feel कि you know कि अब तो इतने सारे sums करने के बाद हमें पता है कि plus कैसे करना है, क्या करना है, premium for goodwill क्या होता है, कैसे होता है. So I am just making it quick, right? चलो फिर next. प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट रिक्वायर्ड. वेरी गुड. तो 2800 हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे वी विल बी रिकॉर्डिंग बाय BDR 2800 एंड इन द बैलेंस शीट आई विल बी रिकॉर्डिंग द डेटर्स. कितने के डेटर्स थे? 56,000 के, राइट? चलो फिर next is just a minute. Machinery is to be reduced by 10%. Machinery कितने की है? 17,500 की. It is to be reduced by 10%. So what will we do? What will we be doing? Revaluation account में to machine account 1750, and in my balance sheet I will be recording the new value of machine, that will be 17500 minus 15750, right? चलो फिर क्या बोला है हमें? बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला है. आई सपोज बिल्डिंग की वैल्यू, yes, machinery is to be reduced, sorry, market value of building is 70,000. now building की वैल्यू 42,000 है और उसकी हो गई है अब कितनी वैल्यू? 70,000 हो गई है. तो कहना ही से कि बिल्डिंग की वैल्यू 28,000 से बढ़ चुकी है, करेक्ट? yes. so let's record the same. building 70,000 and in my revaluation account by building 28,000, करेक्ट? जो भी वैल्यू थी उसकी अब जाके क्या हो गई है? 70,000 वैल्यू हो गई है. चलो फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 68,950. सो लेट्स रिकॉर्ड दैट एज वेल. हमने भले इन्वेस्टमेंट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ी है वो भी लिखनी पड़ेगी, हमारे लिए तो गेन ही है. बाय इन्वेस्टमेंट्स 5950 एंड हियर इट विल बी द न्यू वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स 68,950, राइट? तो ये हो गया क्या? मैंने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू लिख ली जो भी थी वो, करेक्ट? चलो फिर नाउ एनीथिंग इज लेफ्ट फ्रॉम द एडजस्टमेंट्स. लेट्स लुक एट द सेम. एज सच कुछ बाकी नहीं बचा है, राइट? ऑल द एडजस्टमेंट्स वी हैव कवर्ड अप. नाउ जो भी चीज़ें हमारे पास बैलेंस शीट में लिखनी रह गई है, जो हमने नहीं लिखी है, वो फटाफट से लिख दे. सो
दिस इज डन, दिस इज डन. वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड लिखना है. क्रेडिटर्स वी आर सपोज टू राइट दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन. ये भी हो गया. एवरीथिंग इज डन. सो यहाँ पे सिर्फ लायबिलिटी में जो जो चीज़ें लिखनी बाकी है दैट वी विल बी रिकॉर्डिंग फटाफट से. वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, it is 31,500 and creditors it is 44,800. करेक्ट. इतना हमें दिया हुआ था जो मैंने शांति से सारा बैलेंस शीट में और हर जगह पे लिख दिया है. राइट. अब नाउ व्हाट, नाउ अब हम देखें तो मैंने आपको बोला कि भाई इसमें जस्ट अ मिनट, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें एक्चुअल में डिस्कस करने हैं. 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ नया हमने पढ़ा. राइट. जिसमें से 8th पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है, टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर जैनी एंड आन्या, टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर जैनी एंड आन्या आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स विल बी मेंटेन इन द रिलेटिवली न्यू रेशियो. आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स विल बी मेंटेन इन द रिलेटिवली न्यू रेशियो. अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब रिवैल्यूएशन को अकाउंट को क्लोज करके मुझे जैनी एंड आन्या की पहले तो कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी. उसके बाद उसको मुझे न्यू रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू गेट द अमाउंट ऑफ प्रियंका. राइट. कि प्रियंका की कैपिटल कितनी होगी. लेट्स डू इट. मैं प्रॉपरली वर्किंग करके आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा. सबसे पहले तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज रिवैल्यूएशन अकाउंट का फटाफट से बैलेंस निकाल लेते हैं. Here it will be 28,000 plus 2800 plus 5950. Just do it. Here you will be getting 35,000 to partners capital account. Jaini and Anya in their old ratio, so 21,000 and 14,000 by revaluation account 21,000 and 14,000. करेक्ट. नाउ अब मुझे आप सबसे पहले तो जैनी का कैपिटल अकाउंट जो है उसका टोटल करके दो, कितना आ रहा है. 70,000 plus 5040 plus 2520 plus 14,000 plus 21,000. It has to be 1,12,560, right? So here 1,12,560 and the balance is what? 1,12,560, right? Then Anya ka total 56,000 plus 3,360 plus 1,680 plus 14,000 comes to 93,800 and the balance is also what? 93,800, right? Now अब हमें क्या बोला है पता है, जो मैं यहाँ पे वर्किंग करने जा रही हूँ. जस्ट लुक एट दैट. जैनी का Chinese capital account balance is what? 1,12,560, right? Anya's capital account का balance is 93,800, right? दोनों का total करो. Here there is a totaling mistake. Yes, here there is a totaling mistake. The balance over here is 75040, right? Here it is 75040 if I am not wrong, right? There is a mistake of totaling, right? There is a totaling error. Oh. I thought so, so I calculated it and you are supposed to do the same only. So 75040 will be there. 75040 plus we will be doing 112560. Then we will be getting 1,87,600, right? This is what we have got, right? हमें दोनों का कैपिटल अकाउंट का टोटल मिला के ये 1,87,600 मिला. नाउ मुझे ऐसा बोला गया है कि आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स दैट वी हैव फिनिश्ड, जो भी मेरी कैपिटल आ रही है दोनों पार्टनर्स की, उसको मुझे नए PSR के अकॉर्डिंग रखना है. नाउ न्यू PSR इज 2:2:1. Can I say Jaini and Anya ka is 2:2?
So it will be 1:1 only. 2:2 is same as 1:1. So what 187,600 we have got, उसको मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है 1:1 में या 2:2 में, वट एवर इट इज. सो यू विल बी गेटिंग 93,800 एंड 93,800 ओवर हियर. आपको क्या मिलेगा, 93,800 एंड 93,800. नाउ ये मुझे मिला क्या, मेरे पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस. सो हियर व्हाट एम आई सपोज टू डू इज, आप ध्यान से देखना, मुझे करना क्या है, यहाँ पे आई विल बी रिकॉर्डिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन. आई विल बी रिकॉर्डिंग 93,800 एंड 93,800. अब मुझे दोनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस मिला, और यहाँ पे अगर आपको याद हो क्रेडिट साइड पे वी हैव गॉट ओनली 75,040, राइट. सो हमें यहाँ पे इतना पता चला कि मैम यहाँ पे तो फिर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाएगा ना, 93,800 विल बी द टोटल, नो करेक्ट. क्योंकि मैंने क्या किया, हमें जैसा एडजस्टमेंट में बोला था ऐसा मैंने करा. पहले तो दोनों का बैलेंस फाइंड करा, दोनों का टोटल करा, देन आई डिस्ट्रीब्यूटेड इट बिटवीन द टू पार्टनर्स इन द न्यू PSR दैट वाज इक्वल, करेक्ट. सो वी गॉट द बैलेंस ऑफ द क्लोजिंग कैपिटल दैट इज 93,800 एंड 93,800. उसके बाद कुछ तो बैलेंस बचेगा दोनों पार्टनर्स के अकाउंट्स में, राइट. यहाँ पे मैं बात करूँ जैनी के कैपिटल अकाउंट की, तो 1,12,560 माइनस 93,800, you will be getting 18,760 का बैलेंस ओवर हियर. इस साइड पे आपको बैलेंस मिलेगा, जो हमें कहाँ से एडजस्ट करना है. इफ यू कैन सी इन द क्वेश्चन, तो हमें ऐसा बोला गया है कि इट विल बी मेड, ऑल द एडजस्टमेंट्स विल बी मेड थ्रू बैंक. तो ये जो भी एडजस्टमेंट करना आया मेरे को, जो बोला कि भाई 18,760 का जो बैलेंस आया, दैट आई विल बी एडजस्टिंग विथ व्हाट, बाय बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आई विल बी रिकॉर्डिंग बाय Jainis capital account 18,760. एंड हियर इन द केस ऑफ आन्या, तो मुझे 93,800 का बैलेंस ज़्यादा मिला है, उसमें से मैं ये 75,040 का बैलेंस आया था वो मैं माइनस करूंगी, तो हियर आई विल बी गेटिंग 18,760 का बैलेंस, राइट. सो दैट विल ऑल्सो बी एडजस्टेड बाय बैंक अकाउंट. So in bank account on debit side, I will be recording to Anya's capital account 18,760, right. So this is how we are supposed to manage the same. यहाँ पे भी 18,600, 18,760 दोनों साइड पे ये बैलेंस बचा, राइट. वाई सो, बिकॉज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन बैलेंस ऑन बोथ द साइड्स, राइट. ये मुझे मिला. अब बात करते हैं नए पार्टनर के कैपिटल की, दैट इज प्रियंका का कैपिटल. प्रियंका के कैपिटल को हमें फाइंड कैसे करना है, तो बोला है कि भाई दोनों पार्टनर का जो टोटल कैपिटल आएगा ना, उसका 20% प्रियंका विल ब्रिंग. नाउ दोनों का टोटल कैपिटल इज व्हाट, 1,87,600, राइट. सो here I am doing it. Priyanka's capital will be 1,87,600 into 20% comes to 37,520. So what am I supposed to do is, यहाँ पे मैं प्रियंका के कैपिटल अकाउंट में लिखूंगी by bank or cash, whatever, 37,520, and closing balance of hers will also be 37,500. And in my cash account, I'll be recording to Priyanka's capital account 37,520, right. So this is how I am supposed to calculate the capital. इसमें मेन चीज़ क्या थी, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड करना was मेन, राइट. तो ये हो गया मेरा 37,520. नाउ व्हाट एम आई सपोज टू डू इज, मैं सबसे पहले तो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में लिख लूँगी. 44,800 में से 800 कहाँ चला गया, कैपिटल अकाउंट्स Jaini, Anya and Priyanka, 93,800, 93,800 and 37,520.
2,25,120 you will be getting. And in my cash and bank account, what am I supposed to do is, यहाँ पे 39,200 plus 14,000 plus 37,520 plus 18,760. So you will be getting what? 1,09,480 minus 18,760. So here you will be getting the balance by balance carried down, 90,720. 90,720 that we will be recording on the asset side of the balance sheet, that is 90,720, right? So what we will be doing now, total karo, 3,01,420. See, ये फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चन में द मेन पोर्शन वाज दिस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कि मुझे कहाँ से मिलेगा। तो मैंने और कुछ नहीं करा, मैंने सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए, फिर दोनों पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस निकाला, जिसमें यहाँ पे 1,12,560 मिला एंड आन्या के अकाउंट में 75,040 मिला। दोनों का टोटल करके उसको मैंने न्यू PSR में डिस्ट्रीब्यूट करा एंड देन फ्रॉम दैट आई रिकॉर्डेड दैट क्लोजिंग बैलेंस एंड द बैलेंस दैट लेफ्ट वॉज एडजस्टेड थ्रू बैंक अकाउंट। और उसके बाद व्हाट वी डिड वाज कि भाई प्रियंका की कैपिटल हमने फाइंड करी, दोनों पार्टनर के टोटल बैलेंस जो भी है कैपिटल का इनटू 20% करके वी गॉट द कैपिटल ऑफ प्रियंका, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट. You are requested to watch this video twice and do the sum on your own after you are doing it with me once, and then you are supposed to do it again on your own. Thank you.